Ji, Assalamualaikum everyone, it's Shoayb and welcome to the live update from Crypto Affairs. It's 3rd of February, almost 7 p.m. in the evening, and welcome to the live Friday update. Let's discuss first. The data is out, and it's one hell of a big joke. The non-farm payroll data is out, and we were pretty much expecting it to, move the market when it comes to the impact on the Bitcoin, but the situation is be really choppy in this. The dollar just shot up. The all the money flow from the gold, like we've been discussing since like 2 or 3 weeks, like there's an excess of $34 trillion in the gold, and gold was pretty much waiting for the correction. So the money flow in the dollar index is basically and mainly is from the gold, and we're gonna have a look in a second how does it look like. Let me share my screen here. I hope you can see all of it. Okay, is my voice clear now? Please let me know. Mic check 1 2. All right, so that's our BTC. But just to give you the insight, well, for the non-farm payroll, the previous one was the 260, the forecast was 185, and the actual actually came out at 517, which is a really surprise. And when it comes to the unemployment rate, the previous one was 3.5, the forecast was 3.6, and actual come pretty much low. As per the forecast, it's really a 0.2 percent of a difference. So there's a surprise here also. So well, the main stuff happened here. And why is that? Well, let me give you the inside of it. If you remember the pump in the BTC right here, when we tapped 24,200 early in the morning yesterday at 5:30 a.m. As soon as the market is open when it comes to the like Asian market. So the dollar pretty much dropped, and it was sitting at its support. So the 100 value of a dollar index is actually the support, and it was sitting at with the CME gap, and it quickly recover by the time we entered into a New York session. And today, well, dollar is gaining its strength again. It's back to these levels, and we're gonna have a look how it will gonna be turning out in the daily and weekly time frames. So dollar is back at it again, and it can be said that yes, it can be a bearish retest until unless it flips the the resistance of 105. Until then, we are still in pretty much hot waters when it comes to the stock market and cryptocurrency. Again, just look at the gold here. It was pretty much stretched. Like if you zoom out and see the daily chart, you can see here even this. Let's talk about in very layman terms. Even if you look at this harmonic, well, it was pretty extended till here. So I'm not sure. I really can't extend this X to this level because of this valley here, but it was pretty much extending, and to my uh, analysis, it should come to the early 1700 levels. So money is pretty much flowing out from gold. It was also pretty much stretched in the daily chart, even in the simplest term of a PA. You can see here how the situation was pretty much unfolding, and this is not really surprising what we are actually seeing in the Bitcoin itself. If you see here, I'm gonna mark this for you. You can see here the bearish engulfing. You can also see something here at this zone. The market went up. The bearish engulfing, the market went up, and again the bearish engulfing, and then the market went up. The same situation is pretty much happening, and this is the type of a manipulation because there is no explanation how you can put it out, how you can actually say, oh, I knew about it. Like if this bearish engulfing gonna be retested or get invalidated, if anybody is saying that, he's pretty much lying, because as per the PA, it's just in a pretty much clear terms. The bearish engulfing yesterday opening was invalidated. We closed below than that, and now it will be a continuation pattern. But if you look at the Bitcoin, uh, the bearish engulfing here, the market went up. The bearish engulfing, market went up. Bearish engulfing, market went up. So
Well, it's kind of screwed up. So even if whatever the situation is happening here, we will be, doing the MSB, or what you can say, the true entering into the bearish scenario until unless we lose this support. Simple as that. These two bodies, that 22832, until you lose it and closes below than that, then you will be, retesting this level, and then there will be a confirmation of bearish trend here, because the same two candles can be said, made it up here. So until we are losing this support, the same 22,800, well, we shouldn't be, celebrating any kind of stuff. A lot of people also bought at above $24,000 because they thought the market is going up and all that kind of stuff. The market is, reaching the 25k. Well, 24.8k is still in the books, but I don't think that will be a really easy way to reach here, until unless we get some strong support from here. Even in the terms of the LTF time, you can see it here. Even in the terms of the LTF, well, it was a pretty choppy PA here, because we tapped almost 24,950 where the topper exited, and bleed it down our way. We made a harmonic here. By the way, this harmonic is uh, all done. If you remember, I posted it yesterday. So those who were asking me, they were like, "Oh, the D point. Are you talking about the D point, or are you talking about the B point?" Well, the completion, pretty much settles until you reach the B point and absorbs it. So the X, the A, the B, the C, and the D. So D point was, I slightly adjusted it by $150. It was at here, but now if you consider this high, so till then this was our B point, and at 3:30, so that's been pretty much tapped and absorbed. So it's also completed, posted in a free group and a Twitter also. So we are done with this. Again, I'm looking at still some scenario. If you look at the 2 hourly chart, and I can see this uh, gap here, the fair value gap or imbalance, you can say. So I'm looking at it, and I'm actually planning to long the BTC from here. Uh, Here's my 0 and 1. Okay, actually I'm gonna draw it. Well, it will gonna be the same stuff, so I'm gonna draw it from here. uh, if you go for the standard one, well, it can be the entry being pushed from here. All right, this can be the actual entry from here for a slight long, and the invalidation below this point, 22885. So oh man, I'm really bad finding my tools. Sorry for that. Long position. All right. So I'm talking about this range here. I'm gonna remove the fib. If even if you consider the fib here, well, you can tap this level at around here, and you can put the SL at this point. So that's like 2.6 RR setup, if I'm not wrong. So that's a slight, a good long that we can play out. So I just saw it, so I thought to share with you. All right. So, anyways, looking at the gold again, um, I'm uh, I'm really happy because I'm in a short, and I opened my short from here at 1930s level, and well, I'm still planning to book it and pyramid it until like 1700 level. So 1786 will be my first TP. So still looking at it. If you want to jump in, at least wait for a for a bearish retest first, and then we're gonna have a look how the situation is unfolding. My entry is at 1936. I have a couple of lots opened. uh, I wanted to share on the Twitter, but again the situation kind of unfolds against me, because everybody was
whatever happened in last two giveaways, they'll be like, okay, are you giving away this situation, like the profit and whatsoever. So I'll announce if I make any kind of commitment, but for now, no giveaways for now. So okay, so that's the BTC situation. I'm also gonna have a look here. Why is happening? Okay, this is the situation. Okay, so the orders are still here at 21,500 level, already posted again on mentoring launch and also on Twitter. The situation is the liquidity is building up here at 21,500 levels. We are sitting at here. Well, we need to exit this PA, this choppy PA, this huge big WPA. We have to leave this scenario to reach there. It can be a like fake orders, the spoofing orders, until unless we lose this level and go below it. And on the clean chart, I mean by this again, until unless you lose this level and go below it. So the liquidity buildup is pretty much changed from 20,525 to 21,500. Okay, so the equalize, the buildup is here, nothing above. The current resistance and cycle level is still existing at $25,000 level. So that's more about it. So I'm gonna actually remove this imbalance because I don't need it in the higher time frame or the LTF. I'm pretty much good with this imbalance here. So that's the major update about it. So let's have a look on quickly on Ether. Right, so we had our resistance, the previous resistance at 1679. We rejected from here, and then it remains here because it's not absorbed. No candle closed above it entirely. So the POI for the Ether is sitting at 1605, and the liquidity buildup is still same at 1500 levels. All right, somebody's asking me about the BNB. Okay, the last time I remember somebody was talking about the BNB longing towards uh, like 400. I don't remember the guy from mentoring launch maybe, or somebody asked me in the free group. तो मुझसे ये पूछा जा रहा था कि BNB को जो है लॉन्ग कर लिया जाए $400 तक की लेवल तक. एंड आई रिमेंबर आई आस्क हिम के भाई जो 333 वाला लेवल है ना आपका, ये बड़ा भी चौपी लग रहा है. तो हम जो हार्डली भी गए, यू कैन सी कि हमने पीक जो उसकी टच करी है वो इक्वलाइज की शक्ल में हमने 334.4 की करी है. सो देयर इज़ अ ह्यूज रेजिस्टेंस प्ले आउट, और मे बी ये बुलिश एक हार्मोनिक यहाँ पे बना रहा है लाइक दिस. सो इट विल गोना कम बैक डाउन अगेन, क्योंकि अभी आपकी जो BTC थोड़ा ब्लीड हो रहा है. BTC पे अभी इम्पैक्ट आएगा जब पैसा निकलना जो है यहाँ से शुरू होगा. तो ये जो कल परसों जो सारे पंप वगैरह हुए थे कॉइन, वो भी आपके जो है ना तबीयत से नीचे वो आ जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज डॉलर का इम्पैक्ट अभी आना शुरू होगा. इट विल टेक अ वाइल, एंड ये फ्राइडे क्लोजर के टाइम पे सारा मामला हो रहा है. तो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि आपकी जो मार्केट है ये तकरीबन कितने बजे, 3 बजे जो है क्लोज़ आपकी होती है, 3 साढ़े 3 बजे जो है पाकिस्तानी टाइम में रात में जो USA मार्केट होती है. तो उसके बाद जो है देखा जाएगा कि मामला उस पर क्या है. अगर ये इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन होगा BTC पे जाके, तो ऑफ कोर्स इट विल गोना ब्लीड, एंड पैसा तो उसमें निकलना है. अगर टोटल आप देख लो तो हमने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जो है हम इतना सर्वाइव नहीं कर सके. हम दोबारा इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आ गए, यही 1.025 ट्रिलियन पे. तो 1 ट्रिलियन से ऊपर अभी $25 बिलियन पे हम खड़े हुए हैं. जो हाईएस्ट हम गए वो गए 57 बिलियन पे. तो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा पैसा जो है ना 1 ट्रिलियन से ऊपर का वो निकल चुका है. तो ये टेस्ट करने यहाँ भी आएगा 1 पॉइंट लाइक यू कैन से $9 बिलियन तक आपके. 25 - 9 हाउ मच इज़ दैट, 16 बिलियन डॉलर आपके और निकलते हैं. तो BTC आपका अर्ली mid 22 की रेंज में जो है वहाँ पे इजीली आ सकता है. ये है तो रीटेस्टिंग जोन इसका ये मार्क थे 962 बिलियन का. दैट विल बी अराउंड आपका 21,600 की ये तकरीबन रेंज होगी आपकी BTC की. सो वंस यू आर डन विद दिस रीटेस्ट इट, दैन यू माइट गो ब्लो इट, जो भी इसके मामला हैं. लेकिन
अभी 80% चांस हमारे पास नीचे के हैं, 20% चांस हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि एक फेक आउट इसमें आना है, देन हम जो है इस पर प्रॉपर ब्रीथ करते हुए जाएंगे. सो इफ देर इज़ एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज़ डू. अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो आस्किंग मी अबाउट के पाकिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से आप बता दें उस पर क्या चल रहे हैं मामला, क्या उसका चक्कर आ रहा है. तो अगेन देखें, आई एम नॉट एन इकनॉमिस्ट एंड मेरा जाविया शायद उसमें थोड़ा बायस हो सके. डॉलर के हवाले से जहाँ तक बात आती है कि आपका स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है एक डॉलर ही आपका वो है, तो डॉलर में लास्ट जुलाई में चार्ट एक पोस्ट किया था, हम उस टाइम पे खड़े हुए थे 218 पे. जो डॉलर की वैल्यू थी पीकेआर में, मतलब यूएसडी के हिसाब से ले रहे हैं या उसमें ले रहे हैं यूएसडीटी के हिसाब से, हम 218 217 पे खड़े हुए थे. समबडी आस्क्ड मी इफ़ आई कैन बाय एट दिस पॉइंट, तो आई सेड के थोड़ा सा ये 11-12 की उस पर आ जाए दैन इस पर बाय कर लेना. जो रेंज जो है हमारी वो तकरीबन दिख रही है 262 की आती हुई. एवरीबडी वाज लाइक कि 250 क्रॉस कर दिया बड़ी बात है 48 पे, तो एक बहुत बड़ा टाइम जो है हम 45 से 50 तक उस पर रहे. देन वंस वी ब्रीच्ड इट, तो हमने जो है फिर उस पर तकरीबन वहाँ पे रीच उसको किया 280, इवन के 85 पे, इवन के ब्लैक में जो लाहौर वगैरह में उस दिन जब ये डॉलर बढ़ा था, लास्ट फ्राइडे की बात है क्लोजिंग की बात, तो वहाँ पे 320 रुपये का भी जो है वो मिल रहा था. सो अगेन द मार्क इज स्टिल सेम. अभी फ़िलहाल ये कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इसमें आएगी यूएसडी पी के आर में उसमें, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लुकिंग एट दी 305 लेवल. 305 तक जो है डॉलर जाने की उसकी सिचुएशन है. पेट्रोल आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो पेट्रोल टमाटर डॉलर ये तीनों की रेस आपकी लगी हुई है. तो अनफॉर्चुनेटली ये इसकी सिचुएशन है. इसने जाना है. अब आप आईएमएफ से अगर किस्तें मांगते रहें, आप उस पर सारी वो चीज़ें करते रहें, लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि डेट सीलिंग जो है ना आपने अपनी बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करनी थी कि क्या उसमें वो चीज़ आ सकती है. ठीक है. सेकेंडली दूसरा ये कि अगर आप आईएमएफ से किस्तें लेते रहेंगे, आप इस तरीके की चीज़ें जो है वो हज़म करते रहेंगे, तो आपके ऊपर ही वो चीज़ आ रही है. आपकी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट हुआ है पिछले 3 साल में, काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वाइंड अप करके जो है मतलब यहाँ से वो हो चुकी है. एक सिंध के एरिया में अगर बात करी जाए तो आपकी जो बू जो होता है ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो है आपका एक्सपोर्ट उस पर ज़्यादा था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री पे जो है कोई मुश्किल से ही इसमें जो है वो हाथ डाल रहा है. अगेन एक बड़ी हिट हमें जो है सियालकोट की जो एक आपकी जो पूरी ये फुटबॉल और ये जो स्पोर्ट्स की वो जो उस पर वो होती है, उसमें आपको एक हिट मिली. सेम गोज़ फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो आपके पास गिनी चुनी चीज़ें हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस बुनियाद पे अब स्टेट बैंक आके अगर सैंक्शन पे सैंक्शन लगा देता है कि नहीं, सबके पास मैसेजेस आए, सिम पे खोल के आप प्रीवियस जाके देख लेंगे जो पूरे साल का जो आपका आउटफ्लो या जो भी होगा वो $30,000 का होगा, ये मामला होगा वो होगा. तो दैट विल ट्रिकल डाउन अगेन फॉर द फैक्ट दैट के आपकी जो मंथली इनकम है वो आवर के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो आपको कंसिडर कर रहे हैं अराउंड $1.8 समथिंग. सो दैट्स अ प्रीटी मच जोक. तो ये है, मैं इस पर एक डिटेल में एक मैं बात करूँगा नॉट ऑन लाइव, बिकॉज अगेन बातें फिर कुछ वही हैं कि मेरे पर्सपेक्टिव से शायद कुछ बायस हो सकती है. आई एम नॉट अ पर्सन के वो जैसे वो पॉडकास्टर्स आके बैठते हैं बिल्कुल ही एक एलीट फैमिली से आके दैन वो दिखाते हैं कि हम जो है इस घर से उठ के आए, मैंने 18 साल करोला चलाई थी, मैं 9th क्लास में पहली बार यूएसए गया था, ये गया था. वेल आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट. आई डोंट वांट टू एड्रेस एनी बुलशिट और एनी गिव एनी पॉलिटिकल ओपिनियंस, बिकॉज अगेन इफ़ आई डू द सेम तो वही वाली सिचुएशन है. पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने इनकम का 3 बार जो है टैक्स दे रहा हूँ, और मेरे घर के सामने ही अगर सड़क टूटी हुई है, मेरे घर पे अगर रात 10 बजे के बाद गैस नहीं आ रही है, मेरे घर में अगर 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, सो आई गिव अप प्रीटी मच फ्लाइंग डैम अबाउट के आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है एंड इफ़ आई साउंड द पॉलिटिकली करेक्ट और नॉट. सो ये उस वे सिचुएशन है. अच्छा, एक सवाल आया भाई कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द ब्लैक सॉन इवेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइक लेवल. साइक लेवल चार्ट पे जो होता है साइकोलॉजिकल लेवल ये होता है $25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल. ये कि यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट के कुछ साइकोलॉजिकल लेवल जो बीटीसी के होते हैं कि भाई $10,000 है जैसे साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इससे नीचे आएगा तो बीटीसी 4 डिजिट में ट्रेड कर रहा है व्हाट्स एवर जो सिचुएशन है. ऐसे ही 25,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल एक बिल्डअप है कि भाई बीटीसी लाइक it's worth like around quarter of 100K. So it's a psychological level. Also the
50,000 लेवल इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करता है। मे बी इनमें टेक्निकली जो है कोई आपको प्राइस एक्शन वाइज कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना रिटेलर या जो कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं जो कि वेल्स होते हैं, वो इधर अपने सेलिंग ऑर्डर्स या बाइंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स कैन प्ले आउट लाइक दिस। अच्छा, अहमद रजा इज आस्किंग भी ब्लैक सॉन इवेंट क्या होता है? ब्लैक सॉन इवेंट फाइनेंशियल मार्केट में उसको कहते हैं कि जिसको एक बहुत सीवियर इम्पैक्ट जो एक आता है मार्केट को गिराने का, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। यू कैन प्रीटी मच एंटिसिपेट के लाइक इफ दैट काइंड ऑफ स्टफ गोना हैपन, लाइक अभी जैसे हम बात करते हैं कि भाई एफओएमसी की कोई मीटिंग आ रही है या एफईडी के रेट हाइक्स आ रहे हैं, तो यू कैन प्रीटी मच स्पेकुलेट ऑन इट कि यार प्राइस सेक्शन में इतनी जगह नहीं दिख रही कि ये लेवल आएगा वो लेवल आएगा, सो देन मार्केट गिरती है, पंप होती है, व्हाट्सएवर जो भी इसकी सिचुएशन होती है। लेकिन जब ब्लैक सॉन की इवेंट की बात करी जाती है तो इट इज़ समथिंग टोटली ऑफ द बुक्स ऑफ द चार्ट्स के। आपको पता है कि लाइक ये करेक्शन होनी है, बट न्यूज़ क्या आएगी, वो कैसा अनफोल्ड होगी, दैट विल बी लाइक द ब्लैक सॉन इवेंट जो होता है उसमें वो किया जाता है। फॉर सपोज के डॉट कॉम बबल जो था वो आपका एक ब्लैक सॉन इवेंट था। उसके बाद आपका जो 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस पे वो एक आपका ब्लैक सॉन इवेंट था कि एक वो चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, एक बिल्डिंग ही नहीं थी, उसका 8वां फ्लोर भी रेंट आउट हुआ था मॉर्गेज के उसमें। एंड वंस दी वन लाइक गोल्डमैन सैक्स जो है वो तकरीबन गिरना जब शुरू हुआ, एंड जो सारे उसके मामला थे, वो एक आपका ब्लैक सॉन इवेंट था। अगेन 12 मार्च 2020 को अचानक से आके आते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आके न्यूज़ में लाइक पाकिस्तानी 7:30 बजे आके, एंड ही एक्चुअली सेज दैट के फर्स्ट टाइम उसने कोरोना वायरस को चाइना वायरस कह के जो है पूरी उस पर ट्रैवल बैन लगा दिया। एंड मार्केट ड्रॉप लाइक हेड फर्स्ट, नोज डाइविंग उसने कर दी। तो दैट वाज द ब्लैक सॉन इवेंट कि नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि डोनाल्ड ट्रंप आके कोई ऐसी जो है स्टेटमेंट देगा। एंड सेम 2021 में जैसे 19 मई को शाम 5 बजे जैसे वो चाइना ने आके अचानक से न्यूज़ कर दी कि हम माइनिंग पे और इस पे जो है बैन लगा रहे हैं और सब कुछ हो रहे हैं, तो इट वाज आल्सो वन ऑफ अ ब्लैक सॉन इवेंट। तो ये इस तरीके की चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई ऑलरेडी गिव कमेंट ऑन द नॉन फार्म पेरोल्स। 45 minute BTC bullish band in 22,900 range, can you please check it? भाई आपका बुलिश बैट जो है ना बनने के लिए, ये इधर एक्सपेंशन जो है ना इसकी बहुत हो चुकी है। अगर ये इस तरीके से बनता हुआ जाता, ये स्क्यूड हो गया है काफ़ी कि इसका जब हम सेंटर देखते हैं ना, तो ये वाली जो कैंडल थी आपकी 45 मिनट्स की, मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये आपकी 2 फरवरी 7:15 की जो कैंडल थी, इसको एक्चुअली बनना था इधर कहीं कि सवा लाइक 2:45 से 4:15 तक के दरमियान में, इधर कहीं बीच में बनना था, तो ये चीज़ होती। लेकिन ये अब स्क्यूड हो चुकी है, सो यू डोंट काउंट इट एज द बुलिश हार्मोनिक, बट यू विल जस्ट कंसिडर इट के आप इसको समझ लो ये 45 मिनट्स है, तो इसको एस एफ पी आप इसको कंसिडर कर लो, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। एस एफ पी है ये। हमार शेख इज आस्किंग मी, यस देयर इज स्टिल अ चांस। Weekly death cross is looking all good. You can't actually avoid it, and that was just the fun stuff. के a lot of people are coming and abusing me and on the Twitter के आप जाके इस तरीके की आप बात कर रहे हैं, आप उस पर बायस। भाई मैं उसमें क्या बायस हो रहा हूँ? मैं आपको इफ़ यू थिंक अबाउट इट, 22,222 वाली रेंज किसने सबसे पहले आपको आके बताई थी? ठीक है, जब बीटीसी, मैं आप अगर आपको याद नहीं, मैं बता देता हूँ, बीटीसी 18,345 पे उस टाइम पे खड़ा हुआ था। तो इफ़ आई वॉज बेयरिश एट दिस पॉइंट, वेल यू मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। ऑल आई वॉज सेइंग कि भाई ईयरली ओपन आपका टेस्ट नहीं हुआ है, हमने नीचे जाके वो करना है। जितना आप ऊपर होते हुए जा रहे हो, तो आपका लो जो है वो इतना ही नीचे एक तरीके से बनता हुआ जाएगा, बट ईयरली ओपन तो टेस्ट होना है वन वे और अनदर। आप उसको किस तरीके से लेके आते हो, आई एम नॉट अ फंडामेंटल गाय टू निक पिट के आपकी क्या उस पर जाके सिचुएशन होगी, लेकिन वो आके टेस्ट होगा, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब उसमें आगे अगर आप नॉलेज या एक प्रीटी मच स्टफ को 2+2 को आप आके 4 को, अगर मैं एक चीज़ को एम्फेसाइज करूँ, आप अगर आगे उसमें ईगो बोलो, तो वेल अगर बैड न्यूज़ फॉर यू। सो उस पर एक वो चीज़ थी। एंड
सिचुएशन ये कि वीकली डेथ क्रॉस की एक वो बात ये थी कि भाई बीटीसी की पूरी हिस्ट्री में जो है वीकली का डेथ क्रॉस फर्स्ट टाइम बन रहा है। पहले बनता हुआ आया लेकिन उसको उन्होंने जो है पूरा अवॉइड कर दिया। उसमें लाइक पहले प्राइस इतनी कम थी, उसको इजीली जो है मैनिपुलेट किया जा सकता था जो भी मामला थे, लेकिन इस टाइम पे उसका अवॉइड करने के लिए यू नीड टू लाइक रीच इट टू द लेवल के आप अभी से इसको शुरू करें और 15 फेब तक आप इसको ले जाएं 55,000 तक कंटिन्यूसली, तो आप मे बी उसको अवॉइड कर दें। ठीक है, एंड यू जस्ट गो ऑन एंड 55,000 के बाद जो आप उसको रीटेस्ट करें तो आप 32,000 से नीचे ना लाएं। तो दैट्स द सिचुएशन उसको अवॉइड करने के लिए। सो अनटिल अनलेस जब तक ये नहीं हो रहा तो वीकली दैट क्रॉस बन जाएगा। डेली का दैट क्रॉस लास्ट टाइम जब बना था जाके खोल लें आप, डेली के चार्ट पे जाएं, एक मूविंग एवरेज लगाएं 50 का, एक लगाएं 200 का। जब 50 वाला ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे 200 को, सो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि उसका क्या है। अब इम्पैक्ट क्या आएगा, तो डेथ क्रॉस बनते ही साथ इम्पैक्ट नहीं आता बिकॉज ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मे बी उससे पहले हम क्रैश कर जाएं विच इज़ ऑल्सो वी आर इन अ प्रोसेस, मे बी जस्ट स्टार्टेड, लेकिन स्टिल आपके हाइज जो हैं वो हैं। ऐसा नहीं है कि डेथ क्रॉस बना एंड उस टाइम पे आप सोचें कि अब बीटीसी जो है ऊपर नहीं जा सकता। यस, उसका जो नेचर है, जो उसकी आ, एक तरीके से जो रूट एक जो पूरी होती है वो एक बदल जाएगी उस पर, एंड उसका जो है ना एक डाउन ट्रेंड एक वो स्टार्ट हो जाता है। सो वंस यू लेट इट प्ले आउट, क्योंकि जो ट्रिकल डाउन हो रहे होता है इम्पैक्ट वो 4 आवर 12 आवर डेली 3 डे एंड देन वीकली पे जाके उसका वो हो रहा होता है मामला। सो यू जस्ट गोटा वेट फॉर इट टू प्ले आउट अंटिल लाइक ये फैब के मिड में कहीं जाके हो रहा है, तो यू नीड टू गिव इट अ टाइम अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एंड देन उस पर जाके हम वो देखेंगे कि मार्च में हमारे पास जो है बड़ा क्रैश आता है या नहीं आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ऑलराइट। ओके, अच्छा जी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अभी भी टाइम है और शैल वी वेट? आई ऑलरेडी सेट कि अगर लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग है जो कि 2 हफ्ते या 3 महीने की होनी है तो वेट कर लें थोड़ा, ईयरली ओपन तक आने दें, क्योंकि अभी यहाँ पे तो बाइंग करने का कोई मुझे ग्रोथ वो एक तरीके से जो है वो नज़र नहीं आ रही। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू बाय और गेटिंग स्टक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड आई होप एक आपको जो है डायरेक्शन इसमें मिल गई होगी कि इस पे सिचुएशन क्या है। आई एम गोना बी पोस्टिंग द चार्ट्स एंड अंटिल देन एटलीस्ट इस वीडियो को जो है शेयर कर दिया करें। बार बार जो है वो कहना है कि वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन काइंड एक इट काइंड हर्ट्स कि आप जो है पूरी डॉलर वैल्यूज़ पे लाके आप अपडेट्स बता रहे होते हैं, सब वो मामलात कर रहे होते हैं, एनालिसिस दे रहे होते हैं, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो एक तरीके से जो है वियर्ड आता है। सो मैं इसका जो है अभी दूसरा जो लेक्चर्स हैं अभी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा वीकेंड पे। आई माइट टेक अ डे ऑफ टू अगेन गो बैक एंड स्टडी, एंड उसके बाद जो है वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। सो फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, सीख लें, कदर कर लें उस चीज़ की, क्योंकि ये चीज़ जब बुल रन जब आपका स्टार्ट हो जाएगा 2024 में और हाविंग के टाइम पे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, देन यू विल बी प्रीटी मच regretting के ये आपने क्यों नहीं किया था। सो thank you so much, I'll be here if there's any query, do let me know, and yeah, don't let the market surprise you. Thank you so much, Allah Hafiz.